dealing with the emotions of the child, saving the child from media, telling them that this is not correct. पहले मैं क्या करती थी, नहीं तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है. I used to pose on my daughter. Parenting coach के बाद we got so many values added to it. I came to know how to say no to my child, how to save my child from media, and there were many more things. These courses taught me how to involve yourself with your child. Budgeting, and I feel they should teach their children also, involve them in the household budget. And other stressful thing is they have to maintain a balance between their social life and their home life. आज की एरा बदल चुका है, चीज़ों को करने का तरीका बदल चुका है, तो कैसे डिसिप्लिन हम मेंटेन करें फ्रीडम के साथ? तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रेबेलियन नेचर उनका हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है. They cannot bear the restrictions we pose on them. They can't. So hello everyone, welcome to Pooja's talk show once again, and this is my season 2 and first episode with Bindu ma'am once again. And happy to have you here, ma'am. Like same here, and it would happen so soon. I could never dream about it. Thank you, Pooja, for having me here. And one more important thing कि आप मेरे पहले गेस्ट हो जो फिर से once again we are meeting Fantastic. you. And this is amazing. आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है. Same So here. बिंदु मैम के बारे में अगर मैं बताऊं तो first of all she is an amazing public speaker. She is a communicator. जिसके बारे में हमने हमारे फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी डीपली इसके बारे में डिस्कस किया था. तो नाउ शी इज़ अ पेरेंटिंग कोच, शी इज़ एन ऑथर, शी हैज़ रिटन 5 बुक्स. तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में और उससे रिलेटेड चीज़ें. तो कहीं मत जाइए और डू सब्सक्राइब बटन होता है तो उसे सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए. सो वेलकम टू द शो बिंदु मैम. कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है. आई एम फीलिंग सो गुड बीइंग हियर विद यू. एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी हम फिर मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म में. नाइस, ग्रेट टू हैव यू हियर मैम. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑफलाइन शोज करना मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है एंड आई मस्ट से कि मतलब इट्स अमेजिंग. मतलब जो फीलिंग एनी टाइम ऑफलाइन इज मच बेटर देन ऑनलाइन. यू रियलाइज इट विद टाइम. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट मैम. तो सबसे पहले आप पेरेंटिंग कोच में हो, पेरेंटिंग कोच हो, आप कोचिंग इंडस्ट्री में आ गए. आप, मैं भी एक कोच हूँ. तो हम जब भी किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक किक होती है हमारी. कभी कभी हमें वो पता चल जाती है तो हम चूज करते हैं, कभी कभी कोइंसिडेंटली वो हमारे साथ हो जाता है. तो आप पेरेंटिंग में कैसे आए? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ पेरेंटिंग कोच? Last February, I resigned from Delhi Public School, Dehradun, because there was something inside me which said I should move out and perform somewhere else. Create more profiles for me, and for the past 2 years I was doing that. So how I came into parenting was that I wrote, as you have told the viewers, that I'm into writing. So I had written a portion in one of the anthology of my best friend Jagriti Pathak. So that was on parenting, mindful parenting. 1 or 2 chapters I had written, and that changed me so much. I said, why not go ahead with the course, certificate course. Then I joined Deep Parenting. I did my Deep Parenting under Manish sir. He's my mentor over there. And now I think I should do more in parenting. After becoming a coach, I might go ahead with the child psychology and special parenting and special education. So that's how my change from a teacher, and once a teacher, as it is always a teacher, friends. So anyways, I am part of teaching. I am moving ahead in schools to give my speeches on different aspects of good parenting. Great to hear about it, ma'am. So आप पेरेंटिंग कोच हो, आपने बताया आपने सर्टिफिकेशन किया. तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैम. हम कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग? एक जो टीचर होता है
वो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, इधर उसने कभी भी उस कॉन्सेप्ट को डीपली फील किया हो या नहीं, डीपली उसने उस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई किया हो या नहीं, दैट इज टीचिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोचिंग एंड ट्रेनिंग, इट्स ऑल अबाउट की जो वो हर चीज जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है. यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको पूजा. टीचिंग इज मोर सिंसियर एंड inborn. It comes out from your heart. And coaching is slightly different, much more different than teaching. आपने जो कहा, जो हम अप्लाई नहीं करते, नहीं, हम जो सिखाते हैं बच्चों को वो हमें अप्लाई करना पड़ता है और करना चाहिए, तब जाके हम वी बिकम अ गुड पेरेंटल कोच. पेरेंटल कोच जनरली स्कूल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, स्कूल्स में कोचेस होते हैं, काउंसलर्स होते हैं फॉर स्टूडेंट्स. व्हाट वी डू इज वी कोच द पेरेंट्स as to how they can become best parents and lead an effective life for their children. So this is my answer to this Great. question. Actually मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था. हाँ जी, no sorry. My question was like, हाँ. आप खुद एक पेरेंट हो तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपने नर्चर करने में, आपके जो भी बच्चे होंगे उनको नर्चर करने के लिए बहुत सारी Yes, I have a daughter. है, मेरी एक बच्ची है. तो मैं जानना चाह रही थी कि मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स में जो भी सारी चीजें आपने पढ़ी, राइट, एज अ पेरेंट मतलब कैसे वो समझने में, जब सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया तो डेफिनेटली बहुत सारी एड ऑन वैल्यू एडिशन हुआ होगा. और आपको लगा होगा कि शायद ये सारी चीजें मुझे पहले पता होती. Yes, तो many मैं बहुत times, अच्छे से many कर times, पाती हूँ. yeah. तो ऐसी कुछ इंसिडेंट और स्टोरीज अगर हो आपके पास तो यू कैन शेयर विद अस. मैंने एक पॉइंट आपसे शेयर करूंगी जो मैंने सीखा और मैंने सोचा काश मुझे पहले पता होता. वॉज डीलिंग विद द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड, saving the child from media, telling them that this is not correct, this is not, and in a very subtle way. पहले मैं क्या करती थी, नहीं तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है. I used to pose on my daughter. पेरेंटिंग कोच के बाद इतनी सारी जो हमें मिली, मतलब वी गॉट सो मेनी वैल्यूज एडेड टू इट. आई केम टू नो हाउ टू से नो टू माई चाइल्ड, how to save my child from media, and there were many more things. When she would discuss few things with me, at times I would get offended, but then these courses taught me how to involve yourself with your child. बहुत फर्क पड़ा, हमने भी सीखा. मैंने सीखा, वो सिर्फ कोर्स नहीं सीखा, उसको यूटिलाइज करना सीखा अपने बच्चे पे टू स्टार्ट विद. देन स्लोली आई मूव्ड ऑन टू अदर्स मीन्स व्हेन आई वेंट टू स्कूल्स टू गिव माय स्पीचेस, sit with the parents, I could deliver them the correct methodology. So this is how it seeped into me. This course seeped into me, I would say. I got completely involved. मुझे लगा कि हाँ काश ये मैंने कोर्स पहले किया होता. Anyway, I'm learning. We all learn. Yeah. Age is no barrier for that. So yes, now I find myself better involved with my child. Absolutely, ma'am. And you know what? One thing which I love about you, and today morning when I was getting ready, I was talking to Shreyans, and I was talking to like, Bindu ma'am की energy, I love that. The excitement. तो he said कि हाँ मतलब कि कितनी सही है ना, मतलब मैम इतनी एज होने के बाद भी मैम में वो एक्साइटमेंट है, एंड दैट इज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आई सेड यस, मतलब कि ये एक चीज है जो मैम से सीखनी चाहिए, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म एंड people do tell that to me, but I don't realize, I don't know how they realize it. They tell me, here comes this woman full of energy. How did I gain it? By getting into occult field also, I gained lot of energy. When I became a healer, I gained it. And while healing others, I gained lot of energy. So learning different aspects in your life, you should not stop, because there is a deep understanding inside which gets evoked. After I became a parental coach, I can handle others' issues also. Whether I take payment for them or not, but I'm always there.
my old students, their parents, they keep calling me ma'am, अब इसको कैसे मैं deal करूं? I find myself a better teacher now. Like, this is the frankest opinion. I find myself a better teacher. And obviously, as I told you, I'll be moving on to child psychology. I plan to learn about special education for special children. That is it. Yes, the secret of Bindu's ma'am energy is like healing and helping others and learning new thing always. मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप नई नई चीजें करते रहते हो, like you know, trying different things, different scenarios, different courses, meeting new people, Meeting it new people. adds on like lot of energy, lot of enthusiasm. Creating a network. Yeah, and I was the other day, I was with Mr. Anirudh Pathak, LinkedIn Top Voice. Yeah. So I was a convener there in that program. So one sentence sir said, your network is your net worth. Yeah. And that is these days now the status of my telephone. So that's one thing he correctly said. The more you create network, the more you evolve. Yeah. The more you enhance your capabilities. Exactly. Well said, ma'am. And I do believe in that. कि your network is your net worth. And I think उसी की वजह से शायद हम यहाँ पे बैठे हैं आज. Get connected to as many people as you can, whom you meet. Just get connected to them. There is no harm in saying a hello or hi once in a month, twice in a month. Whether maybe you don't like the person, but at least you like the work he or she is doing. Yeah, exactly. So, ma'am, let's connect to the parenting section. So, what are the common challenges जो आज के parents face करते हैं, and how we can address them? The most common and I would say stressful thing that parents are facing these days is media connection of their children. Getting connected, always being with phones and other aspects which can destroy their memory, which can make them part away from their studies, the main focus area that they have to maintain. And other things are also leading a stressful life. They have to cope up between home and their office work. And there are so many other things that parents are facing. Budgeting, and I feel they should teach their children also in budgeting. Involve them in the household budget. And other stressful thing is they have to maintain a balance between their social life and their home life. They have to prove themselves, set themselves as examples. Now they can, they even have to control their desire to move here and there. They have to set themselves as example. Stress, tension, these are also the major problems parents are facing. If they are able to balance all these things, they have to show their children that what they want in them, it is there in them also. They have to set, the time limit also for themselves. They have to discuss with their children that yes, this is my media time, that is yours. Openly tell them this is the thing that they have done. Come back from office and inform them. See, we have done these things. Obviously, they have to be subtle about many things. So that tomorrow the child doesn't say, Papa, आप भी तो ये करते हो, मम्मा आप भी तो किटी पार्टी जाती हो, तो मैं नहीं जा सकता. And obviously it's a very good question, but there are so many answers to that. This, in a nutshell, I've told you, the parent has to set themselves as examples and give time. Give time to your child. I'm telling you, from the beginning, just leave some time for your child and his activities. Get involved in the activity of the child. Make them feel good. Be there for their demands. That's it. Exactly. So, ma'am, like हम जिस एरा में हैं, आजकल के बच्चे हम Gen Z कहते हैं उन्हें, तो कभी-कभी like मैंने सुना है, there is like my friends or my brothers, they
टॉक अबाउट लाइक हमारे जमाने में जब हम थे तो हमारे हमारे जमाने। पेरेंट्स पीट पाट के सही कर देते थे, हम कुछ भी करते थे, हम स्कूल जाते थे हमें तो बड़ी मार पड़ती थी, ऐसा बोलते थे। तो बोलते मैं थे। पूछना चाह रही हूँ लाइक क्योंकि आज की एरा बदल चुका है, चीजों को करने का तरीका बदल चुका है, तो कैसे डिसिप्लिन हम मेंटेन करें फ्रीडम के साथ बच्चों के उसमें, लाइक अगर हम बहुत ज्यादा Excellent question. डिसिप्लिन अगर Yes. नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा लाइक रिबेलियन नेचर उनका हो जाता है, बिल्कुल हो हाँ। जाता है। They cannot bear the restrictions we pose on them. They can't. एक बैलेंस, may I answer? यस मैम। एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और इधर माँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, because most of the time she is there with the children. Generally, fathers they come late from office, so mothers जितना उनको देख रही हैं, और teachers के बाद teachers, because maximum time they are with their teachers, तो mothers have to play important role. आप parents को discipline maintain करना है। फर्स्ट मैं फिर रिपीट करूँगी, अपने आप को एग्जाम्पल सेट करके कि देखिए हम ये जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं, हमारे टाइम पे ये होता था, देयर इज़ नो हार्म इन इट, मगर बच्चों के जो फिर क्वेश्चंस है ना, उनको हैंडल करना आपको पड़ेगा, और बच्चे को थोड़ी छूट दीजिए। आई टेल यू फ्रॉम माई एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू पुट टू मेनी बैरियर्स in front of my daughter, but eventually she told me one sentence, Mama, that means you will never have faith in me. That changed my outlook. So I said, okay, fine, I leave this part of your desire to you, do as you want. And believe me friends, those who are watching this episode, that it changed. It made me realize that yes, I can easily have faith in my child, because the result of that episode came out in such a beautiful way. She had to change her hostel. I was a little bit, restrained about it. But once she took me there, she took her grandparents there, and once it is done, I feel I have done a better job. By having faith, you have to have faith in your child. Your parents had faith in you, so discipline is very important. And how to instill discipline? It has to be done in a very beautiful, subtle, and affectionate way. We have to teach them. Yes, you have to make them realize, yes, I have faith in you, and the world becomes better between you and your child. Yeah. इन माई ओपिनियन आई थिंक लाइक पहले हमें अपने बच्चों को जो हमारे साथ है उन पे ये फेथ देना चाहिए कि लाइक डू योर थिंग, एवरीथिंग, वी आर देयर फॉर यू। We are there. यू जस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स, जैसे कि आई टेल अबाउट माई सेल्फ कि मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, एंड आई गॉट सो मच प्रोटेक्शन एंड केयर, और वो कभी कभी ऐसे लगता था कि लाइक दे आर गिविंग मी अ केज, बिकॉज हर चीज में लाइक वी आर डूइंग फॉर यू, हम कर देते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम छोटे हो। वो हटाना पड़ेगा। हाँ, आपको राइट, हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। That is that. I've learned from that. या एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनको एक फेथ देते हैं कि बेटा आप ये करो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है देन यू कैन टॉक टू मी, आई एम देयर फॉर यू, लाइक, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज होती है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। एंड इसी से रिलेटेड एक चीज है जो मैंने कहीं तो सुना था कि कई बार ऐसा होता है मैम, लाइक इंडियन पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों से ऐसे बोलते हैं लाइक तुम, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, लाइक ये गलत है। इज्जत का एक जो बहुत बड़ा सर्कमस्टेंसेस या एक बहुत बड़ा That's a burden on them. burden It's a जो हम burden. उन पे डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाए, फॉर एग्जाम्पल हम इंसान है, हमसे गलतियां होती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी लाइफ में कोई गलतियां ना करें, तो एक डर होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे शेयर करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स एक कंफर्ट जोन होना चाहिए कि हम उनसे कुछ भी बता सके, क्योंकि कुछ भी शेयर कर सके। हाँ, यस, क्योंकि वी नेवर नो कि हम अपने फ्रेंड से कर रहे हैं या बाहर वाले किसी इंसान से कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से हमें गाइड करेगा या कितनी सही से हमें बताएगा। तो इस बारे में आप हमारे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे मैम? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी, अपने बच्चों पे विश्वास करें,
let them do what they want to do, but make sure you are behind them. कुछ कदम पीछे रहिए, वॉच करते रहिए, फोर्स मत कीजिए, क्रिटिसिज्म मत कीजिए, एंड ओपन क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल मत कीजिए। घर बुला के अलग से कमरे में बात करना और क्रिटिसाइज करना लोगों के सामने इज नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। क्रिटिसिज्म नहीं कीजिए, आप उसको पूरा दे दीजिए, ठीक है, ओके फाइन, आई गिव यू दिस मच टाइम, यू प्रूव योर सेल्फ एंड सेट असाइड योर सेल्फ। तो बाकी अब बाद में आप देखते रहिए, तो आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करेगा। मगर उनको मोटिवेट करना आपकी जिम्मेदारी है पेरेंट्स। यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू इंस्टिल हैप्पीनेस इन देम, मेक देम हैप्पी सो दैट दे आर एबल टू कंप्लीट द वर्क दैट यू हैव डिजाइंड फॉर देम विच दे वांट टू। जब तक आप उन्हें देंगे नहीं समय काम करने का, तो योर चाइल्ड विल नेवर ग्रो। द थिंग इज दैट योर चाइल्ड विल नेवर गो मेंटली। मेरी रिक्वेस्ट तो यही है, गिव देम सम बूस्टिंग, गिव देम सम प्रमोशन ऑफ थॉट्स एंड सी योर चाइल्ड विल ब्लूम लाइक एनीथिंग। राइट, बहुत अच्छा कहा मैम आपने। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लाइक कई बार आपने देखा होगा ऐसे कि मतलब जैसे माँ बाप कंपैरिजन करते हैं, यू नो, लाइक हम इवन तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर आप मछली को बोलोगे कि वो पेड़ पे चढ़ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पूरी जिंदगी भर ट्राई करेगी फिर भी वो नहीं चढ़ पाएगी। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड एवरी चाइल्ड हैज इट्स एबिलिटी टू डू द थिंग्स, बट फिर भी हमारे जो सोसाइटी में ये थॉट प्रोसेस यू नो इनबिल्ड है कि हम कंपैरिजन करने लगते हैं। लाइक तुम्हारे तो इतने परसेंटेज आए, उनको देखो उनके तो इतने परसेंटेज आए, अरे उनके बच्चे ने MBA कर लिया, जॉब भी लग गई, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो लाइक हमें ये बिलीव करना होगा एवरीबॉडी हैज देयर ओन जर्नी। आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें ट्रस्ट करें। एंड काउंसलिंग जो काम एक काउंसलर करता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स सबसे ज्यादा अपने बच्चों को जानते हैं, सबसे ज्यादा समय उनके साथ बिताते हैं, उनकी हर एक्टिविटी हर चीज के बारे में उन्हें पता होता है, तो पेरेंट्स एज अ काउंसलर क्यों नहीं बन सकते, यू नो? बिल्कुल बन सकते। हमारा काम एज अ पेरेंटल कोच यही तो है। We are counseling the parents as to how they have to deal with all the problems and upbringing traumas of the child. We have taken special education for that. And comparison हर जगह होता है, अलग अलग तरीके के comparisons होते हैं पढ़ाई लिखाई में, सिबलिंग्स के बीच में। तेरे बड़े भाई के इतने आए थे इसमें, 10th में तेरे इतने ही आए। एक ऑफिस में भी कंपैरिजन होता है विच कंप्लीटली ड्रेन्स डाउन एंड डीमोटिवेट्स द पर्सन who is working in the same organization. When bosses compare, when parents compare, comparison या तो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो कंपैरिजन सह सके, the child is able to tolerate it, और अदरवाइज डोंट। कंपैरिजन में एक चीज होती है, आप अपने बारे में सोचिए, अगर आपने ये करना है तो आप कर पाए नहीं कर पाए और आपकी कंपैरिजन हो तो कैसा लगेगा। पुट इट ऑन योर सेल्फ एंड चेक आउट। कंपैरिजन्स करना इज कंप्लीट डिमोटिवेशन, इसमें डिप्रेशन भी आ जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है। ओवर जब आप बच्चे को कंपेयर कर देंगे ना, देखो तेरे पड़ोसी के इतने नंबर हैं, एक तो हेट्रेड आ जाएगी उस बच्चे में आपके लिए भी और उस इंसान के प्रति भी जो जिसके साथ आप उसे कंपेयर कर रहे हैं। वो इतनी हेट्रेड होगी, स्ट्रेस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगी, मे बी टेंडेंसी टू perform suicide will be there, and वो बहुत लेट हो जाता है। सो इट इज़ बेटर अपने आप पे उस पोजीशन को रखिए और बोलिए कि सपोज मैं नहीं कर पाता या कर पाती, मुझे क्रिटिसिज्म मिलता तो what would I have done? So that is the most harmful thing you can do with your child, is to compare the child with another situation, another person, another child of his age. Kindly restrain from that. Thank you. Yes. And ma'am, like
इवन दो चीज़ें चेंज हो गई है, लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, आज के जो पेरेंट्स हैं बहुत समझदार हो गए हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड द इन्फो एज। बट फिर भी लाइक नाउ डेज ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ना हमें पता नहीं होती, मतलब एज अ पेरेंट्स नहीं पता होती है। तो अगर उनके बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स दे हैव टू बी एजुकेटेड देमसेल्व्स। या तो कई बार ऐसा होता है ना मैम, लाइक हमारे फैमिली में अगर ऐसा किसी ने किया नहीं हो, हमारे पास उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है कि उसे करके किसी को सक्सेस मिली हो, तो वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे खानदान में भी किसी ने ऐसा किया है, मतलब कोई ऐसा नहीं सोचता। व्हाई यू थिंक लाइक दैट? लाइक आई विल टेल यू माय स्टोरी। लाइक जब कोविड में मैंने वीडियोस क्रिएट करना शुरू किया था एंड आई यूज्ड टू गो लाइव एंड माय फैमिली मेंबर यूज्ड टू टेल मी कि मतलब इससे क्या होगा, मतलब व्हाट इज दिस। वो मेरे साथ भी होता है। हाँ, अभी भी। हाँ, अभी भी। राइट। तो वो शायद अभी थोड़ा थोड़ा समझने लगे, बट स्टिल दे आस्क मतलब व्हाट इज अ बेनिफिट फ्रॉम दैट, लाइक हाउ यू आर मेकिंग करियर फ्रॉम इट। सो जस्ट वांटेड टू टेल कि मतलब किस तरह मतलब हम अपने पेरेंट्स को समझाएं, या फिर पेरेंट्स किस तरह उस चीज को अडॉप्ट एक्सेप्टेंस कहते हैं जिसे, एक्सेप्ट कैसे करे वो एक नई चीज को, क्योंकि शायद उनके आसपास वो चीज हो नहीं रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के लिए कि इनका फ्यूचर कैसे होगा, ये सही से कर पाएंगे या नहीं। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स कंसर्न के उससे ही ऐसी बातें करता है, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पूजा, इफ यू रिमेम्बर इन आवर प्रीवियस गेट टुगेदर मीन्स व्हेन यू वर मेकिंग अ टॉक शो ऑन मी, सो आपने मुझसे पूछा था आपका मेंटर कौन है? आपको याद है मेरा जवाब? मेरा मेंटर कोई नहीं है, मैं खुद की मेंटर हूँ। I learned from myself because I was so happy that I have to move ahead. Parents को नहीं पता चला जब तक मेरी बुक्स सामने नहीं आए, अवार्ड सामने नहीं आए, they were surprised. I took them to one of the award ceremony. So they were surprised, they never knew हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। जब मेरे को उन्होंने स्टेज पे देखा जाते हुए, they were zapped. ये कब किया? सो एट टाइम्स आपको ना, ये मैं स्पेशली बच्चों के लिए बोल रही हूँ, शांत रहना चाहिए। यू डोंट हैव टू शेयर एवरी गुड थिंग यू आर डूइंग। माइंड प्लीज गुड थिंग यू आर डूइंग, डोंट शेयर, गिव देम अ सरप्राइज एंड ले जाओ। जो आप सपोज यू आर डूइंग, यू आर इनटू कोचिंग, गेट योर पेरेंट्स इंट्रोड्यूस टू व्हाट कोचिंग इज। अब उनको नहीं पता है, वो गलती आपकी है, वो गलती मेरी है। The way I took them. Next मेरे को अवार्ड मिला, उसमें अपनी मैं कजिन सिस्टर को ले गई, एंड जब उन्होंने सुना उनके थ्रू क्या है, ये क्या किया है बिंदु ने, so they were so proud of me. Never, कभी don't expect कि लोग तुम्हारी तारीफ करें. If you have to grow, believe me, don't expect people should say yes you are the best, oh my god my child has done this and that. तो पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करो उसी माहौल में. When parents will see you doing wonders, they'll be surely happy and they won't stop you. पहले you just remain silent. Then after achievement, take them with you. दिखाइए अपनी reels, दिखाइए अपनी achievements, दिखाइए. This is how you can make your friends your best buddies in the work that you do. Exactly, well said, ma'am. So एक क्वेश्चन है मैम, लाइक हमेशा पेरेंट्स का रहता है कि हमारे लाइफ में ना हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, तो अभी हमारे बच्चे जब हमसे डिमांड करते हैं तो क्यों नहीं हम उन्हें वो सारी चीज़ें दें या वो कंफर्ट दे। जैसे कि अगर बच्चा, अभी मैं देखती हूँ, मैं भी कॉलेज में हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में एप्पल का फ़ोन 1-1 लाख के 2-2 लाख के फ़ोन लेके टहलते रहते हैं, एंड आई सरप्राइज कि लाइक हाउ देयर पेरेंट्स आर अलाउड। सो बहुत बार पेरेंट्स का ये जवाब होता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते थे तो हम नहीं दे रहे, तो उनकी इलीगल डिमांड्स भी वो पूरे करते रहते हैं, ये कहते हुए कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम दे सकते हैं, वो कंफर्ट, वो सारी रिसोर्सेज हम दे सकते हैं, तो हमें बच्चों को देना चाहिए। तो इस पे एज अ पेरेंटिंग कोच आप क्या कहना चाहोगे मैम, कितना सही है ये हर डिमांड को पूरा करना? देखिए वो सही है, वो अपनी जगह कि भाई हाँ हम कर सकते हैं,
तो हम कर रहे हैं, मगर दिस विल टार्निश द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, वो उन्हें नहीं पता है। फिर वो ऐसी डिमांड्स विल स्टार्ट डूइंग विच दे वोंट बी एबल टू फुलफिल। सो मेरा कहना ये है पेरेंट्स को, जितना पॉकेट है या पॉकेट से कम कीजिए। एक कहावत है हिंदी में, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू एफर्ट, देन व्हाट यू विल डू, देयर इज श्योरली गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ थॉट्स, क्लैश ऑफ एक्सपेक्टेशंस। बेटा मैं आज नहीं कर सकता ये। They have to realize there comes a time in life when you can't give what you used to give. तो ये पेरेंट्स को कंट्रोल करना, फिनेंशियल अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना, और मैं तो ये कहती हूँ बच्चों के सामने बैठ के बजटिंग कीजिए। You should make a monthly budget, tell this is what I'm earning, there is no harm. Yes, 15 साल के बच्चा ऊपर हो जाए तो openly sit with a child, month beginning, make a budget. This is the earning, this is what I have to save for you. ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें पेरेंट्स का एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोल है विच दे हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इट्स अ सिंपल थिंग। जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हो बच्चे के साथ, ड्रेसेस लेने जाते हो, गिफ्ट्स लेने जाते हो, वैसे ही आप बजटिंग सामने बैठ के कीजिए, डे वाइज, ओके फाइन, मंथ वाइज, दिस इज अमाउंट लेफ्ट फॉर योर प्लेजर, दिस इज अमाउंट लेफ्ट फॉर दिस, आवर प्लेजर, होम, and this much we must save because anything can happen. ये acknowledgement, ये realization बच्चों में बड़े धैर्य और प्यार से आपको लानी है। You are a parent, you have to do it. Yeah, and I think मतलब more than biological responsibility, becoming a parent, it's more than a social responsibility. Yes, because very true. बहुत बार मुझे ऐसा फील होता है कि कई सारे लोग पेरेंट बन तो जाते हैं, बट वो एक पेरेंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, It's a difficult responsibility. it's because after certain age of a child, once a child starts earning, then it is different. बिकॉज लाइक मैम अगर बात करें लाइक पेरेंटिंग सिर्फ हम नहीं, मतलब इस दुनिया में जितने भी स्पीशीज है सभी पेरेंट बनते हैं, बट उनकी पेरेंटिंग और हमारी पेरेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। वो बच्चे शायद अपने आप बड़े हो जाते हैं, बट एक इंसान का हर देश में अलग अलग है। हाँ, आप बाहर देख लीजिए, दे हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ challenge, taking up the challenge. Yeah. We have a different way of taking up challenge. सो मैम एक क्वेश्चन मुझे याद आया इसी पे, लाइक फॉरेन में अगर बात करें तो उनकी पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है, बहुत ज्यादा। और वो मैंने देखा है लाइक 15 इयर्स के बच्चे, 13 इयर्स के बच्चे इंडिया आते हैं, ट्रैवल करते हैं, इवन तो बहुत सारे कंट्रीज में वो घूमे होते हैं, Correct. लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी लाइक आई हैव अ फियर, मतलब कहीं भी जाने से पहले एक थोड़ा सा डर रहता है कि कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। और इवन तो इंडियन पेरेंट्स, मतलब बच्चे बूढ़े भी हो जाते हैं अगर लाइक बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर भी वो इतना ज्यादा एक उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके डिसीजंस पे, उनके हर चीज पे, राइट? तो क्यों इतना, मतलब क्या ये सही है? मतलब फ्री नहीं करते उनको, लाइक अगर आपको करियर चूज करना है तो भी पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, आपको आपका लाइफ पार्टनर चूज करना है तो उसमें भी वो कास्ट और ये पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर उन्हें बनने नहीं देते। ये कितना हैम्पर करता है एक बच्ची की ग्रोथ पे? मैं पूजा सच बताऊं, इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री। हमारे देश में बच्चों को खुला नहीं छोड़ सकते, दैट इज फैक्ट। वेरियस रीजंस सब लोगों को समझ आ गई होगी। बाहर जाते हैं, स्पेशली लड़कियां जाती हैं, अब तो आजकल लड़कों के जाने पे भी रोक टोक है। दे आर स्कैर्ड, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। आई एम गिविंग हिंट्स, आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ मत दे। अच्छा, शादी अपनी मर्जी से करनी है, डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं आजकल, तो अच्छा अब ये शादी में कैसा लड़का देखे कि ये तो छोटी है या छोटा है। दे नीड पेरेंटल सपोर्ट, दे नीड फैमिली सपोर्ट टू सेलेक्ट द बेस्ट।
ये है भावना है हमारे हिंदुस्तान में कि भाई बच्चों को सारे काम अकेले नहीं करने चाहिए। ये सही भी है, गलत भी है, वो डिपेंड करता है मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड पे, हाउ मेच्योर एंड एक्सपीरियंस द चाइल्ड इज एंड हाउ व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द पेरेंट्स। तो बोथ वेज आई वुड से इट इज गुड. My feeling, my study says it is good as well as bad also. Maybe your child is better in terms of selection of a groom or a bride. क्या पता आपका बच्चा काफी घूमा है, फिरा है, उसको पता है, वो कर लेगा. At times it happens. At times it goes just the reverse. So this is such a question that I would say it depends upon the family situations where you are living and what is your background, educational background, what is the education background of your. आजकल हमारे यहाँ की जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों लड़कियों को भी बाहर भेजा हुआ है. वो अकेले रह रही हैं, अपने आप सिचुएशन हैंडल कर रही हैं. पेरेंट्स बोल भी देते हैं हाँ चलिए यू सेलेक्ट योर ओन, हम थक गए आप अपने आप सिलेक्शन कीजिए, हो जाता है. सो ये ऐसा है कि इसमें सही भी है, गलत भी है. इफ द चाइल्ड वॉक्स इन अ बेटर वे, इन अ बेटर डायरेक्शन, इट्स वेरी गुड. इसका मैं एकदम स्ट्रेट आंसर नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है एट टाइम्स बहुत अच्छा हो जाता है. और पेरेंट्स कभी मना करते हैं तो दे आर हाइपोथेटिकल, उनके अंदर कुछ फेयर भी है, वो भी एक्सपीरियंस है, थ्रू एक्सपीरियंस है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है जमाने में. These things. Exactly. Well said, ma'am. So, I've given you a very diplomatic answer. yeah, It happens like that. What to do? exactly. So, हमारे पेरेंट्स को कुछ 5 टिप्स आप देना चाहोगे आपकी तरफ से? The best 5 tips as a parent: after certain age, be a friend to your child. Don't force things on your child. Be positive. ये मेरा 3rd point हो गया शायद, isn't it? And above all, try to have faith in your child. Faith रखिए, हाँ my child can also take the right route. एक बार try करके देखती हूँ मैं या देखता हूँ मैं. And topmost is always be with your child. Be with your child, stay next to the child and keep watching from a distance without making him or her feel that you are being watched. That is it. Okay, so amazing session, Bindu ma'am. Once again. Thank you. मजा आया आपसे बात करके. So any feedback आप जो देना चाहो? Related वैसे to- आपके फीडबैक्स मुझे मिलते ही रहता है, but still. Pooja is growing up in her profession. उसने ऑलमोस्ट सारे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे जो पार्ट्स हैं जो एज अ पॉडकास्टर अचीव कर लिए हैं. कुछ मैं चाहती हूँ ये अब फिल्म की तरफ जाएं और थोड़ा सा पॉलिटिक्स को भी और टच करें, कर चुकी हैं तो. एंड ऑब्वियसली पेरेंट कोर्सेज को और टच करें. दैट इज इट. देयर आर 2-3 areas which she should move ahead in this year till 2025. Films and what was the other? Politics. Some more political figures, literary figures also. Thank you so much, ma'am. And I'm sure she'll do very well in that also. I have seen her moving ahead in life in this field of communication very confidently, and I wish her all the luck. Thank you so much, ma'am, for your lovely wishes. So we have one more segment, rapid fire. Yeah. तो उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी. Last time I couldn't do well in that, remember? I couldn't do well in that. Okay, rapid fire. So you have to answer in 5 seconds. अगर आप नहीं दे पाए तो we will move to the next segment. Next question. और अगर आपने 4 से ज़्यादा सही जवाब दे दिए तो we have a surprise gift for you. Okay.
So your start, ma'am. Yes. Okay. My angels. Nervous? No, इसमें rapid fire I'm always, and in our Toastmasters I'm scared of impromptu speech, isn't it, Shreyansh? Okay. Okay. So when are you most productive? When I'm full of energy. Who's your inspiration? Whenever I'm working, especially. I want work. Okay. Nice. Who's your inspiration and why? Myself. Because the best can come out of me only. Okay. What's something new happening in your life right now? A lot is happening now. I'm planning to move ahead with parental league. I'm going to do child psychology, which is the next, and touch in special education. Okay. I want to touch more and more such parents who are unable to understand the children need them more. Mhm. So how do you start your day? Yoga. So what does success means to you? Success means contentment, fulfillment. Okay. So what is the first thing you notice about someone when you meet them? Shoes, So what do you notice about me, ma'am? eyes. Okay. Shoes Why in not men, shoes in men and eyes in women. Okay. So what was the feedback about eyes? Eyes, you have beautiful, round, deep eyes, Okay. which are full of dreams. Wow. Yes, it's true actually. Okay. So describe yourself in 3 words. Competent, stubborn, and a beautiful person. Okay. Amazing. So you want gift, ma'am? Of course, it depends on you Yeah. whether Actually, you are satisfied or you not. won the contest and it Okay, was book. amazing. That's your And book. Yes. And here I am giving you my book. Thank you so much. She's a writer also, in spite of being a podcaster, friends. Nail the convo with strangers. Means same now? Yeah. Communicate with Communicate with same. ठीक है. What did sir say in the meeting, Shreyansh, that day? That was the word networking. Networking. A guide on interacting with people. This is what I love to do. Pooja Khush Raha. Yeah. So thank you so much, ma'am. It was Thank an you. amazing session. I enjoyed a lot, and please do follow Bindu ma'am and do follow me, and please do subscribe my channel. Very soon we are going to upload this episode. Please share with your friends and please be with me.